students, welcome back. Let's begin with starting off the reproductive system of the earthworm. While talking about the reproductive system, the very first word that comes into picture is hermaphrodite. Earthworm is an hermaphrodite animal, hermaphrodite, which means male and the female reproductive system are present in the same organism, wherein we can even use the word that is bisexual, that is the same organism possesses both the sexes. And similarly, the other word for the same could be monoecious, that is a single body contains both the reproductive systems. फाइन, मतलब में उनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलती है एक ही बॉडी में. When we talk about the males के क्या क्या organs होते हैं reproductive system के, तो सबसे पहले होता है the very important thing that you remember the segment. So basically there are present two pairs of testes. अब टेस्टिस हमेशा किस में लोकेटेड होती है, तो टेस्टिक सैक में. जो भी टेस्टिस होती है समझ लो, वो टेस्टिस किस में होती है, तो दैट इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय सैक, टेस्टिस सैक. So basically two pair. So two pair. So we shall see over here in the picture that this is the one in black. This is the first pair of testes. This is the second pair of testes. And you can see that the testes is protected via a covering which is termed to be as the testis sac. So one pair, two pair located in the testis sac. Where are the testes located? In the 10th and the 11th segment. 10th segment में और 11th segment में. तो testis sac कहाँ होंगे? Obviously 10th और 11th segment में. Fine. So basically the testes is two pairs. Testis sac is also two pairs, both in 10th and 11th segment. Now from the testis sac arises a pipe-like structure which is nothing but termed to be as the vasa deferentia, जिनको हम क्या बोलेंगे? vasa deferentia, which carries the sperms to the 18th segment. So basically you can see that this is the first pair, this is the second pair. Now here from this here it arises a tube like structure which will be carrying the sperm. So this tube like structure is nothing but termed to be as the vasa deferentia. Is termed to be as nothing but the vasa deferentia. Fine. Now basically the next thing is seminal vesicles. When we talk about seminal vesicles, similarly two pairs, but exactly below the 10th one, that is 11th and the 12th segment. So when we talk about this seminal vesicle, can you see them? So these are the seminal vesicles. The testes are located in 10th and 11th. Similarly, exactly below the pair of testes are seminal vesicles in the 11th and the 12th segment. Fine. Now we have prostate gland. We have what? Prostate gland. So this prostate gland is one pair. How many pair? One pair, which is located in 17th to 20th segment. Fine. There are one pair but located from 17th to the 28th segment, something like this, that you are able to visualize. So this is nothing but the prostate gland which is located from the 17th to the 20th of the segment. Fine. Now the next one and the last one is the genital opening. We have already studied this, that is the male genital opening which opens outside the body. So that is basically present in the 18th segment, which is lateroventral. Ventral मतलब में that is आगे के side पे, और lateral मतलब में side पे. Fine. तो हमने already देखा था कैसे दो genital pairs होते हैं, मतलब में एक pair होता है. Fine. One pair of male genital opening, fine, which opens outside the body in which segment? That is in the 18th segment. Fine. From here the sperms would get out. So basically you may understand the flow. Yes, and also the other organ of the male reproductive system includes the 6th, 7th, 8th and 9th, wherein we have 4 pairs of spermatheca. So basically what all are the organs of the male reproductive system? One pair and two pairs. So two pairs of testes, fine, that is 4 in number, protected by testis sac so that it doesn't get damaged. Fine. Then exactly below the testes we have 1 and 2 pair, that is in the 11th and the 12th segment we have testis sac.
fine. From the we have seminal vesicles. We have what? Seminal vesicles. From this from this testis sac, as you can see, arises two big pipe-like structure termed to be as vasa deferentia, which opens itself into two big glands termed to be as the prostate glands. And over here, this structure, as you can see, so this is nothing in the 18th segment. So over here we have two openings, that is the male genital pore. We term it to be as male genital pore, yes, which is present on the ventral side and even present on the sides. Fine. So basically this genital pore is a common duct for the sperms to get out, and even from the even for the fluid which is being secreted by this gland. तो इनमें से जो fluid निकलता है वो भी इसी डक से बाहर आता है, और जो टेस्टिस से होके ये वास डेफरेंस से होके जो स्पर्म्स आ रहे हैं वो भी प्रोस्टेट ग्लैंड में जाके कहाँ उसका ओपनिंग कहाँ होगा, तो इन दिस कॉमन प्रोस्थेटिक एंड द स्पर्मेटिक डक्ट. इस डक्ट का क्या नाम है? प्रोस्थेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट, विच इज अ कॉमन डक्ट फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द for the removal of the material which is secreted by the prostate gland, along with what? Along with the secretion of the sperms. Fine. Yes. So this is about the male reproductive system. We shall understand what happens actually. So when we talk about the testes, तो testes क्या करेगी? Testes produces spermatogonia. अब testes क्या produce करेगी? वैसे सेल जिनमें से sperms बनेंगे, तो spermatogonia. अब ये जो सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं जिनकी हमने बात की थी, तो देखो जैसे कि हमने डायग्राम में हम देख सकते हैं कि वो टेस्टिस से नीचे होके एक फनल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ऐसे शॉर्ट फनल लाइक स्ट्रक्चर, वो आप देख सकते हो. तो टेस्टिस जो स्पर्म बनाएगी वो कहाँ जाएंगे? सेमाइनल वेसिकल्स में. हर टेस्टिस के नीचे होती है सेमाइनल वेसिकल, तो वो जो स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे वो सेमाइनल वेसिकल में जाएंगे. कहाँ जाएंगे? सेमाइनल वेसिकल में. फिर सेमाइनल वेसिकल में वो क्या करेंगे? मेच्योर करेंगे. क्या करेंगे? मेच्योरेशन ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया इनटू स्पर्म्स. अब ये जो स्पर्म्स इधर मेच्योर हो जाएंगे वो वापस कहाँ चले जाएंगे? वापस चले जाएंगे टेस्टीज में मेच्योर होने के बाद. फिर टेस्टीज से होके वो जाएंगे मेच्योर स्पर्म्स वास डेफरेंशिया में, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में, और फिर ये जो कॉमन डक्ट है उधर से वो बाहर निकल सकते हैं. फाइन. नाउ बेसिकली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्पर्मेथिका देन? स्पर्मेथिका एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है, तो उसका क्या फंक्शन होता है? तो बेसिकली ये स्पर्मेथिका क्या करते हैं? दूसरे जो अर्थवर्म होते हैं उनके स्पर्म को स्टोर करते हैं. फाइन. तो ये जो स्पर्म है यहाँ से निकल के दूसरे अर्थवर्म में जाएंगे, और दूसरे अर्थवर्म के स्पर्मेथिका में भी स्टोर होंगे. और इस अर्थवर्म की बात करें तो ये अर्थवर्म क्या करेगा? दिस विल स्टोर द स्पर्म्स ऑफ द अदर अर्थवर्म. फाइन. सो बेसिकली टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्मेटोगोनिया. सेमाइनल वेसिकल में स्पर्मेटोगोनिया का मैच्योरेशन होगा इनटू स्पर्म्स. वे वापस सेमाइनल वेसिकल से वापस कहाँ जाएंगे? टेस्टीज में जाएंगे. फाइन. सो जो ये फनल की हमने बात की उसको बोलेंगे सेमी ड्यूकल फनल. ये जो फनल जैसा स्ट्रक्चर है जो हमने देखा, जो टेस्टीज और सेमाइनल को कनेक्ट कर रही है, सेमाइनल वेसिकल को, उस फनल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सेमी ड्यूकल फनल. फाइन. तो टेस्टीज से होके ये सेमी ड्यूकल फनल से होके ये आएंगे सेमाइनल वेसिकल में. फिर सेमाइनल वेसिकल में से वापस ये फनल लाइक थिंग से आएंगे इनटू द टेस्टीज. फिर टेस्टीज में आके वापस भी क्या करेंगे? इट विल गो टू द वास डेफरेंशिया. यस. सो ये हमने बोला कि भाई वो उसका कैसे स्ट्रक्चर होता है. टेस्टीज से होके वो जाएंगे यस सेमाइनल वेसिकल. सेमाइनल वेसिकल में वो स्पर्मेटोगोनिया मैच्योर होंगे. किसमें? स्पर्म्स में. ये जो स्पर्म्स मैच्योर हो गए हैं वे वापस सेमीड्यूकल फनल से वापस चले जाएंगे टेस्टीज में. फाइन. वापस टेस्टीज में जाएंगे. टेस्टीज से होके वो जाएंगे वास डेफरेंशिया में. बराबर. अब ये वास डेफरेंशिया होती है, फाइन, वो कहाँ मिलती है? तो इट मीट्स द प्रोस्टेट ग्लैंड. बराबर. अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके अंदर जो डक्ट होता है, उसका जो डक्ट है, फाइन, तो जैसे हमने ये प्रोस्टेट ग्लैंड सपोज ड्रॉ किया है, तो उसमें से जो डक्ट निकल रहा है, और समझ लो ये वास डेफरेंशिया है,
तो जो स्पर्म्स है वो मेच्योर होके वास डिफरेंशिया से होके क्या करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड में आते हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, तो इट सीक्रेट सम मटीरियल, द फ्लूइड मटीरियल विच विल हेल्प इन द पैसेज ऑफ द स्पर्म्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म्स। सो बेसिकली ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो अपने स्पर्म्स पोर करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड में। फाइन, ये जो वास डिफरेंस है वो अपने स्पर्म्स पोर करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड में। सिमिलरली इनमें से जो फ्लूइड निकल रहा है वो इस डक्ट से पास होता है। तो यही एक कॉमन डक्ट है, यही एक कॉमन डक्ट है। तो ये डक्ट की हम बात कर रहे हैं, वही कॉमन डक्ट है जिनमें वास डिफरेंशिया भी ओपन होता है और यस ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी ओपन होता है। इसीलिए हम इसको बोलेंगे इसको हम बोलेंगे क्या, तो कॉमन प्रोस्थेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट। प्रोस्थेटिक मतलब में जो प्रोस्टेट ग्लैंड ओपन हो रहा है इसीलिए प्रोस्थेटिक डक्ट, और ये वाला डक्ट का जो सीक्रेशन है वही इधर से ही बाहर निकलेगा, इसीलिए इसको हम बोलेंगे कॉमन प्रोस्थेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट। स्पर्म्स भी यहाँ से ही बाहर आएंगे एंड हियर विल बी द ओपनिंग विच इज प्रेजेंट इन द 18th सेगमेंट, द मेल जेनाइटल ओपनिंग। फाइन, और इसमें से जो सीक्रेशन होता है उसमें हमने जैसे क्या बात की कि उसके अंदर ऐसा मटीरियल होता है जो स्पर्म्स को फ्लूइडिटी देता है, साथ ही साथ इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो न्यूट्रिटिव होता है जो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देता है। साथ ही साथ इसमें जो फ्लूइड सीक्रेट होता है वो दो पार्टनर्स जो होते हैं, जो दो अर्थवर्म्स होते हैं उनको कनेक्ट करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन पीरियड, कि भाई ये जो सीक्रेशन होता है वो दोनों पार्टनर्स को अटैच करके रखेगा। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेल पार्ट। नाउ मूविंग अहेड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल की बात करें तो उनमें ओवरीज होती हैं, पैर में होती हैं, मतलब में 2 होती हैं। फिर ऑफ कहाँ लोकेटेड होती है, तो भाई 13 सेगमेंट में हमें पता है, 10th और 11th में टेस्टिस होती हैं, 11th और 12th में सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं, और 13th खाली रह गई है उसके नीचे की, तो ऑब्वियसली उसके अंदर होगी ओवरीज। तो दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर कि भाई 10th और 11th में टेस्टिस हैं, फिर 11th और 12th में सेमाइनल वेसिकल्स हैं, तो अब कौन सी जगह बाकी रह गई है, तो दैट इज़ ऑब्वियसली 13 सेगमेंट। तो 13 सेगमेंट में हमें वी विल बी एबल टू फाइंड दैट इज़ अ पेयर ऑफ ओवरीज। फाइन, लोब्यूलेटेड होती है, मतलब में ऐसे बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं उसके अंदर, लोकेटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द वेंट्रल नर्व कॉर्ड, जैसे कि जो बीच में से नर्व कॉर्ड जा रही है उसके बाजू में होती है। फाइन, ये जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है जो हम पढ़ेंगे तो उनके साइड में होती है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। सो जैसे इट्स हैज़ अ लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस वेयर इन इट हैज़ वेरियस दैट इज द ओवरीज कंटेन्स वेरियस एग्स, नंबर ऑफ एग्स। अब हम बात करेंगे ओविडक्ट की, किसकी बात करेंगे, ओविडक्ट। सो हर ओवरी के नीचे इन द 13 सेगमेंट लाइज अ स्मॉल ओवेरियन फनल। क्या होता है, दैट इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी 13 सेगमेंट जो लिखा गया है वो 13 सेगमेंट से स्टार्ट होती है। जैसे कि ये है अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज के नीचे एग्जैक्टली ये 13 सेगमेंट से स्टार्ट होने वाली विच रीचेस टू द 14 सेगमेंट ऑल्सो, दिस इज नथिंग बट ओवेरियन फनल। इसको क्या बोलेंगे, ओवेरियन फनल। अब ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है वो एंड होता है इनटू ओविडक्ट। ये क्या है, तो ओविडक्ट। तो इट कंटेन्स ओवरीज एंड ओवेरियन, दिस इज ओवेरियन फनल एंड दिस इज ओविडक्ट। फाइन, यस नाउ यस, और उसकी जो ओविडक्ट होती है उसकी ओविडक्ट भी कैसी होती है, उसकी फोल्डेड मार्जिन्स होती हैं और वो सीलिएटेड होती हैं, उसके ऊपर सीलिया होते हैं जिससे जो एग है वो इजी मूवमेंट कर सके। अब उसका पैसेज कैसा होता है कि ओवरीज में से निकलता है ओवा। वो ओवा कौन कैप्चर करता है, ओवेरियन फनल। वो जो ओवेरियन फनल होता है वो कनेक्टेड होता है, जैसे कि ये है ओवेरियन फनल, तो ओवेरियन फनल इज कनेक्टेड टू द ओविडक्ट। फाइन, और फिर ये जो ओविडक्ट है इट ओपन्स इनटू द द फीमेल जेनाइटल पोर, मतलब में बॉडी के बाहर जो फीमेल जेनाइटल पोर होता है जो हमने देखा था। फाइन, देयर आर मेल जेनाइटल पोर ऑल्सो एंड इन द क्लाइटेलियर रीजन वील फाइंड ऑल्सो द फीमेल जेनाइटल पोर। तो ये जो ओविडक्ट होता है वो कहाँ ओपन होता है, दैट इज इन द फीमेल जेनाइटल पोर। फाइन, now
बेसिकली ये था स्पर्मेथिका, जो मेल का पार्ट है उसकी हम बात करेंगे। तो स्पर्मेथिका ऐसा दिखता है जिसमें दो पार्ट होते हैं, ये है डाइवर्टिकुलम और ये है एम्पुला। फाइन, उसका स्ट्रक्चर स्पर्मेथिका का एक फ्लैश शेप स्ट्रक्चर होता है, जिनमें ऊपर होता है नेक, नीचे होता है डाइवर्टिकुलम और नीचे होता है एम्पुला। तो ये बेसिकली जो डाइवर्टिकुलम है वो क्या करते हैं, वो स्पर्म को स्टोर करते हैं। किन के स्पर्म को, जो दूसरा अर्थवर्म होता है उनके स्पर्म को। सो दिस इज बेसिकली अबाउट द detail about the male and the female reproductive parts. Now we shall study about the copulation thing. What basically happens in the copulation, that is during the meet. So that we will be studying in the next class. Till then, you remember all the different parts of the male and the female reproductive system. Thank you.